जी गुड इवनिंग। तो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਟੈਲੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਥਿਓਰਮਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਥਿਓਰਮ क्या है, every uniform continuous function on an interval is continuous। ठीक है जी, every uniform continuous function on an interval is continuous। ठीक है जी, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਟ ਕਨਵਰਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪੱਕਾ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਜੇ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਆਪਾਂ x1 y1 ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਏ ਸੀ, x1 y1 ਕਹਿ ਲਓ, x1 x2 ਕਹਿ ਲਓ, xy ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕੱਲ੍ਹ x1 x2 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ xy ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ, ठीक है, ਤਾਂ कंटिन्यूस हो गए। एवरी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन ऑन एन इंटरवल इज कंटिन्यूस ऑन दैट इंटरवल। ठीक है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, सोच के देखो, अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है तो जेड़े मर्जी दो पॉइंट लो, ठीक है, वो कंटिन्यूस होएगा। वो जेड़े मर्जी दो चो अगर एक फिक्स करता तो टेस्ट पॉइंट डिसाइड हो गया, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ। ਕੱਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਫॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 डेल्टा ग्रेटर दैन 0 सच दैट ਆ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੰਡਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਥਿਓਰਮ ਫॉर ਥਿਓਰਮ ਸੇਕ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਇੰਪਲਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ। ਚਲੋ ਲੈਟ ਸੀ ਬੀ ਦਾ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਇੰਟਰਵਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਨੂੰ ਸੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਈ ਨੂੰ ਸੀ ਲੈ ਲਿਆ ਉਰੇ ਵੀ ਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਰੇ ਵੀ ਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਕਸ ਵਾਈ एक्स कॉमा सी बिलोंग टू इंटरवल। ठीक है, सो सारी डेफिनेशन पॉइंट स्पेसिफिक होगी, टेस्ट पॉइंट आ गया सी पॉइंट स्पेसिफिक होगी तो कंटिन्यूस आ गया। ठीक है, सी इज़ एनी पॉइंट ऑन द इंटरवल। इट फॉलोज दैट एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन एवरी पॉइंट। हूँ एवरी पॉइंट पर किमें कंटिन्यूस हुई, अरे सी असी एक स्पैसीफिक लिया, कोई बंदा डी भी लै सकता, कोई बंदा ई भी लै सकता, कोई एफ भी लै सकता है। सी किते भी लिया इंटरवल, किते भी डी, किते भी ई, किते भी एफ, इसका मतलब इट फॉलोज दैट एफ इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ आई। जे एवरी पॉइंट ऑफ आई पे हो फिर आई पे भी कंटिन्यूस होंगे। ठीक है जी, मेरा ख्याल है कि बहुत सौखी थ्योरम है। ठीक है जी, सो कन्वर्स पे आ जाइए। सो कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू है, कन्वर्स ते भी मैं कल वाली एग्जाम्पल ही लही है, बट अज इहदा प्रूफ दूजी तरह दे रहे हैं तुहाडे कोल, जां कल तुहानूं ये ग्राफिकली बना के तुहाडे कोल, क्योंकि रेसिप्रोकल फंक्शन है। ठीक है जी, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਕਨਵਰਸ ਨੀਡ ਨਾਟ ਟੂ ਬੀ ਟਰੂ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੇਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा कि इस क्वेश्चन ये उत्ते स्पैसीफिकली क्वेश्चन है, चार ऑप्शन दिती हैं तो पूछ रहा है कि यूनीफॉर्म कंटीन्यूटी कर रही है कि कि नहीं कर रही। ठीक है, तो सी सैक्शन क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये 3 बार मेरे ख्याल एफ एक्स इक्वल टू 1/x जी है ऑप्शन आई हुई है। सो जोड़ा है तुहाडे कोल इस करके बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की कीता सी, ग्राफ ड्रा किया, रेसिप्रोकल फंक्शन है, ग्राफ ते किते गैप नहीं आया। ठीक है जी, जीरो क्वेश्चन आप लेना नहीं क्योंकि जीरो ते क्वेश्चन नॉट डिफाइंड है, तो यदा मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूस हो गया। या आज मैं करता एक्स अप्रोचिस टू सी आ गया, तो सी जीरो तो है नहीं गा, तो यदा मतलब एफ ऑफ सी आ गया, एफ ऑफ एक्स अप्रोचिस टू सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, तो यदा मतलब तुसी कंटिन्यूस हो गए। सो कंटिन्यूटी वाली दिक्कत आप खत्म करती। ठीक है जी, नाउ वी शैल प्रूव दैट इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस।
कल जो मैं क्वेश्चन किया सीगा, कल मैं ये 2 स्पैसीफिक पॉइंट्स लए सी। मैं तुहानूं ये कहा सी कि ये कर्व है जिहड़ी ये असिम्पटोटिक है। असिम्पटोटिक का मतलब हुंदा है भी इस लाइन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस घटता जाएगा, इनफिनिटी ते जाके टच होने की संभावना है वो आपां ना पहुँचे, इनफिनिटी ते ना टच कराई तो मतलब डिस्टेंस घटता है। ठीक है, सो ਉਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ अगर जीरो दे ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ कल जीरो दे बहुत नेड़े एक अगर ਆਪਾਂ पॉइंट लईए जिन्हों कल असी डेल्टा किया सी, तो एफ ऑफ डेल्टा साडा जिहड़ा सीगा जीरो के बहुत नेड़े का मतलब है एफ ऑफ एक्स इनफिनिटी के बहुत नेड़े। दूजा पॉइंट शायद मैं 1/2 लिया सी, 1/2 ले लो, 1/3, 1/4 कोई दिक्कत नहीं कल वाले क्वेश्चन के विच। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली इनफिनिटी -2 आ गया, इनफिनिटी -3 आ जाओ, इनफिनिटी -4 आ जाओ। हाँ जी, बाय चांस तुसी कल वाला लैक्चर नहीं देखा तो ये थोनों एबजर्ड जिहियां गल्लां लगणगियां, इस करके पहला कल वाला लैक्चर जरूर देख लियो। ठीक है जी, कल वाला लैक्चर अगर तुसी देख लिया उस तो बाद ये कॉन्टीन्यूटी जी बन जाती है। एक देखो कॉन्टीन्यूटी लाइफ च भी जरूरी है, कॉन्टीन्यूटी सबजैक्ट पढ़न च भी जरूरी है। अगर पहला लैसन है कॉन्टीन्यूएशन तुसी दूसरा कर रहे हो तो समझ आ जाना है, अगर पहला किया नहीं दूसरा फिर जंप आ गया तो फिर जरूरी नहीं हिसाब किताब बने। ठीक है जी, ये पढ़ाई की कॉन्टीन्यूटी की गल कर रहे हैं। सो अज फिर आप मान लो तुहानूं किसी नूं लगे कल वाला तो जी रफ एस्टीमेट सीगा, हालांकि वो भी बड़ा ठीक ठाक प्रूफ सीगा, तो फिर अज तुहानूं फॉर्मल जिस तरह तुहाडीआं किताबां च डेफिनेशन दी हुंदी है उदां आपां लै चलीए। सो वी शैल प्रूव कि ये नॉट यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूज है। करना की है, यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन की एनी 2 पॉइंट ले लो। ठीक है जी, उन्हों का डिफरेंस बहुत घटे तो फंक्शन का डिफरेंस उन्होंने 2 वैल्यूज़ से भी घटना चाहिए। ठीक है जी, सो आप लिख लिया जी फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर दैन 0 वी फाइंड एन सच दैट। ठीक है, असी कोई पॉजिटिव इंटीजर लभ सकते हैं सच दैट डेल्टा। ठीक है, एन नीचे बधाई जो 1/2, 1/3, 1/7, 1/10 जो मर्जी ले लो, डेल्टा आप पॉजिटिव उस तो वड्डा लभ सकते हैं। असी 2 पॉइंट ले ले जी, एक एक्स एक वाई। फिर मैं कह रहा मैं तुहाडे कोल कि कन्फ्यूज नहीं होना, कल x1 y1 ले लिया सी, कोई बहुती चिंता वाली गल नहीं। आपां क्वेश्चन सिर्फ ये साड़ी मर्जी नहीं चलनी होंदी, ये विच लेना होंदा है। सो जिहदे विच तुसीं n की वैल्यू कोई भी फिल करके देखोगे, से तुसीं 1 फिल कर दो तो भी कितना कवर होंदा है, 2 फिल करते 1/2 हैगा, 3 फिल करते 1/3 हैगा, 4 हैगा। सो कोई दिक्कत वाली गल नहीं, उरे 1/2 उरे 1/3 ले लो जे कोई चिंता वाली गल है। सो कोई तामी नहीं, दोनों का डिफरेंस ले लिया जी, दोनों का डिफरेंस आधा घटाओगे तो आधा बचेगा। ठीक है, 1/n है, नीचे 2 है तो 1/n उस तो बड़ा होगा। सो ये सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, ये तो बड़ा डेल्टा कितने बदल गया, आप स्टार्टिंग च लिया हुआ सी। तो इन्हां च डिफरेंस डेल्टे तो छोटा है। हुण ये असी मान ली पॉइंट डिफरेंस डेल्टे तो छोटा है। ठीक है जी, हुण असी फंक्शनस का भी डिफरेंस देखना है, तुहाडे पास भी एप्सिलॉन तो छोटा बनता कि नहीं, फंक्शन ले ले, फंक्शन का डिफरेंस ले लिया, ये उल्टा हो गया तो एन बन गया। नैचुरल नंबर जिहड़ा है मॉड तो हटे जाना है तुहाडे कोल। ठीक है जी, मॉड ने नैगेटिव तो हटा ही देना, ये एन आ गया। हुण ये एन आया, एन उरे मैं एप्सिलॉन ले लिया 1/2। ठीक है जी, तो एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 ले ली तो एन ग्रेटर दैन 1/2 बड़े ठीक ठाक ढंग ना आ गया। हुण बंदा कहता जी क्यों आ गया एन ग्रेटर दैन 1/2, सोच के देखो शुरू च एन की लिखा सी, एन इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर लोगे तो घट्टो घट्ट 1 तो लोगे ही। ठीक है जी, घट्टो घट्ट 1 लोगे तो एप्सिलॉन 1/2 सिलेक्ट किया, मैं एप्सिलॉन तो वड्डा आ गया। फिर डेफिनेशन की हुई, जदों इन्हां दा डिफरेंस घटिया तो तुहाडा डिफरेंस तो एप्सिलॉन तो वड्डा आ गया, तुहाडा डिफरेंस एप्सिलॉन तो वड्डा आ गया तो मतलब है एन इत्थे वड्डा सीगा। सो तुसी आ वाली वैल्यू ले ली, तुसी होर कोई वैल्यू लैके भी कंट्राडिक्शन कर सकते हो। सो आ डेफिनेशन साडे को इस तरह सीगी, तुसी किस तरह शो कर दी, तुसी ये डिफरेंस है जिहड़ा तुहाडे कोल इत्थे वड्डा शो कीता। ठीक है, बट असल च की हुंदा छोटा, ਇਹਦਾ मतलब तुसी नॉट यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूस हो। सो कल वाली चीज़ जिहड़ी है वो आपां एक होर तरीके नाल समझ ली। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट थ्योरम ते। सो नेक्स्ट थ्योरम भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अज वाले लैक्चर च बेसिकली मैं 2 थ्योरम्स 2 एग्जाम्पल्स कवर की हैं। अगले 3-4 लैक्चर्स तो काफ़ी ज़्यादा वधिया ढंग का आइडिया हो जाएगा। मतलब कि चाहे तुसी तुहाडी BSc सिंपल है तो पास कोर्स है, चाहे BSc ऑनर्स है, दोनों केसिस के थोड़ा बड़ा ठीक ठाक हिसाब किताब बन जाएगा। सो देखो ज़रा थ्योरम नंबर 2 की कह रही है, इफ एफ इज़ कॉन्टीन्यूज ऑन क्लोज्ड इंटरवल। ये एप्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त है थ्योरम की। जे तुसी कॉन्टीन्यूज क्लोज्ड इंटरवल से होंगे तो यूनीफॉर्म भी होंगे। हुणे की कह के आए सी, हुणे ये कह के आए सी कि जे तुसी कॉन्टीन्यूज हो तो गारंटी नहीं कि यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूज हो।
ठीक है जी। हुण एक कंसटेंट ला के कहता बई जे तुसी कंटीन्यूस क्लोज इंटरवल विच होवो तां तुसी यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस क्लोज इंटरवल विच होवोगे। इहदा मतलब ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करन लई ना ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तुहाडे को स्टार लगा दिता मैं इहदे उत्ते कि वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अगर मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनस करने ने। ठीक है जी। तो आपां इहदा प्रूफ देना शुरू करिए। दिता की होया, दिता होया जे तुसी कंटीन्यूस हो, शो की करना यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस। ठीक है, तुसी कंटीन्यूस हो, ठीक है, तो यूनीफॉर्म कंटीन्यूस शो करना है। मान लो तुसी यूनीफॉर्म कंटीन्यूस नहीं हो, यूनीफॉर्म कंटीन्यूस नहीं हो, जे यूनीफॉर्म कंटीन्यूस नहीं हो तो यूनीफॉर्म कंटीन्यूटी की डेफिनेशन उल्टा करके लग जाएगी, फेल हो जाएगी। दैन कहता पॉजिटिव डेल्टा सच दैट ये वाला एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 सच दैट डेल्टा, ठीक है, एक्स वाई तो आगे की हो गया बई ये छोटा नहीं होएगा क्योंकि तुसी डेफिनेशन में फेल करना। जे तुसी डेफिनेशन में फेल करना ਇਹਦਾ मतलब इन्हों का डिफरेंस एफ एक्स तो वह होगा एप्साइलन तो तुहाडे कोल वड्डा होगा। ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब तुसी एप्सिलॉन कितना भी सिलेक्ट करो डिफरेंस तुहाडा वड्डा आएगा इस कंडीशन के अंडर। सो इनू तुसी नोट इट करना क्योंकि बाद च जाके इन्हें ही कंट्राडिक्शन करनी हैगी है। ठीक हो गया जी। हुण आपां जिहड़ा हैगा इन पार्टिकुलर हुण आपां एक पार्टिकुलर कि देखो आपां एक्स ते वाई की कोई भी वैल्यू लै चूज कर सकते हैं। इन पार्टिकुलर आपां वी कैन फाइंड ए सीक्वेंस एक्स एन वाई एन सच दैट आ वाली डेफिनेशन इत्थे होगी। हुण कई बार बच्चे दिमाग च की आ जाता है, बच्चे दिमाग च आ जाता है आ किहड़े सीक्वेंस फाइंड कर ले जी तुसी एक्स एन ते वाई एन। तो जे मैं पिछले एग्जाम्पल ते वापस जावां, अरे आ एक्स एन वाई एन ही ने तुहाडे कोल, एक्स एन वाई एन ही ने तुहाडे कोल, सीक्वेंस ही ने एन नैचुरल नंबर होगी तो फिर ये वैल्यूज़ आप आराम नाल फाइंड कर सकते हैं। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल सो इन पार्टिकुलर एक्स एन वाई एन वैल्यूज़ फाइंड करते हैं सच दैट आ वाली डेफिनेशन उरे एज इट इज़ आ गई। देखो इत्थे आपां कंट्राडिक्शन की, आपां ने कहा यूनीफॉर्म कंटीन्यूटी नहीं होल्ड करती, नहीं होल्ड करती तो ग्रेटर दैन इक्वल पाया होल्ड तो लैस दैन हुंदा हैगा। ठीक है जी। सो एफ एक्स एन माइनस वाई एन तो आ वाली सारी चीज़ आपने लै ली। हुण देखो जी अगे बनता की है तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो 5 मिनट्स का होर काम है, हौसले नाल चलना, कोई बहुती रोले वाली गलबात है नहीं। ठीक है। सो हुण क्वेश्चन दे विच हैगा तुहाडे कोल, ठीक है, एक्स एन वाई एन आर बाउंडड सीक्वेंस। ठीक है। हुण बंदा कहता जी थोनों किवें पता लग्या बाउंडड है। अरे एक्स एन तुसी किहनूं बिलोंग कीता, इहदे विच कीता ना, जदों एक्स एन तुसी इहदे विच बिलोंग कीता है, ठीक है, तो फिर क्वेश्चन हैगा तुहाडे पास उहदे दोए किनारे फिक्स करते बाउंडड तो हो ही गया। हुण तुहाडे कोल सीक्वेंस है, बाउंडड सीक्वेंस है, बल्ज़ैनो-वास्टर्स थ्योरम की कहती है, बल्ज़ैनो-वास्टर्स थ्योरम करूगी तुहाडे कोल, ठीक है, इहदा एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होएगा। ठीक है जी। हुण क्वेश्चन यह है कि इहदा कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होएगा तो सीक्वेंस वाला लैसन आना जरूरी है। जे सीक्वेंस वाला लैसन पढ़िया होया है तो बल्ज़ैनो-वास्टर्स भी पढ़ी होएगी। ठीक है जी। तो वो कोरसपोंडिंग जोड़ा है तो क्वेश्चन भी आराम ना हो जाएगा। जे नहीं पढ़ी हुई तो जाके तुसी उत्थे बल्ज़ैनो-वास्टर्स सब सीक्वेंस की डेफिनेशन ये सारिया चीज़ां जरूर पढ़ लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी तुहाडे कोल। ठीक है। सिर्फ इत्थे एक दिक्कत आनी है, जिस बंदे नूं सब सीक्वेंस की डेफिनेशन नहीं क्लीयर हैगी ना उन्होंने इत्थे गड़बड़ हो जाएगी। या बल्ज़ैनो-वास्टर्स मैं लिखता दिता तुसी को कित्थों आ गई जी बल्ज़ैनो-वास्टर्स, तो थोड़ा जिहा ख्याल रखना। ठीक है जी। सो अगर तुहाडा सीक्वेंस बाउंडड है तो बल्ज़ैनो-वास्टर्स थ्योरम की कहती है तो वह एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होएगा। तो असी की कीता एक्स एन के कोरसपोंडिंग एक्स एन के ले लिया जी, वाई एन के कोरसपोंडिंग वाई एन के ले लिया। नोटेशन आही होंदी है क्योंकि कन्वर्ज करता है। सो के अप्रोचिस टू इनफिनिटी तो यह अल्फे ते कन्वर्ज करता है, वो इनफिनिटी ते तुहाडे कोल ए बीटे ते कन्वर्ज करता है। ठीक है जी। सो इसका मतलब बल्ज़ैनो-वास्टर्स ने कह दिता तुहाडे पास ही कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हैगा है। ठीक है। सो हुण आपां ने तुहाडे पास वो सब सीक्वेंस की टर्म विच डेफिनेशन लिख ली। ठीक है जी। सो डेफिनेशन एफ ऑफ एन के लिख ली, माइनस कर लिया तुहाडे कोल ते डेफिनेशन तो उदा ही चल रही है फेलियर वाली। आ सारी चीज़ भी आपां लिख ली। आ तुहाडा पार्ट 1 है डेफिनेशन का, आ पार्ट 2 है डेफिनेशन का। ठीक है जी। हुण ध्यान नाल समझियो जरा। ठीक है। आ वाली चीज़ है जी एक्स एन के एन मतलब एन थोड़े पैर च के है सब सीक्वेंस वाला कट्ठा झकना इनू थोड़े को। ठीक है। ये जस्ट सब सीक्वेंस की डेफिनेशन है थोड़े को, इस करके जोड़ा है थोड़ा नोटेशन ध्यान नाल देख लो। हुण होया की, ठीक है, हुण जदों, ठीक है, आपां नूं क्वेश्चन दे विच कहा गया है कि जदों के अप्रोचिस टू इनफिनिटी होएगा, ध्यान नाल समझना सब सीक्वेंस की डेफिनेशन ने इन्हें इजी रोल प्ले करना है तुहाडे को। हुण अगर मेरा के अप्रोचिस टू इनफिनिटी होएगा,
ठीक है जी, जदों आपां इनफिनिटी लै गए तुहाडे कोल वैल्यूज़ नूं, ठीक है। तो आह वाला जिहड़ा आह वाला पार्ट हैगा है, ठीक है, आह वाला पार्ट सोर्स जिहड़ा हैगा स्मॉल हो जाएगा कि जिन्हें इहदे ते जिसने कन्वर्ज करना है वो वैल्यूज़ सेम आ जाणगियां। सो वी कैन से, ध्यान नाल देखियो जी, वी कैन से एक्स एन के अप्रोचिज टू इनफिनिटी इज इक्वल टू तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा वाई एन के इनफिनिटी, ये चीज़ बराबर आ जाणगियां। किवें बराबर आ जाणगियां तुहाडे कोल, ठीक है जी, क्योंकि देखो वैल्यू तुहाडी इनफिनिटी ते जा रही है के दी, जिस तो तुसीं छोटे हो 1/इनफिनिटी बनूगा, 1/इनफिनिटी बन के इसने 0 बन जाना, इन्हें नाल सीक्वेंस बन जाना, इसदा मतलब इन्हां दी वैल्यूज़ जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल इक्वल आ जानी हैगी है। हाँ जी, हुण जरा देखिए, ठीक है, 1/nk है तुहाडे कोल, इत्थे भी nk हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो कई बुक्स 1/n लिखिया हुंदा तुहाडे कोल, जे nk है तो उरे भी nk ही लिखूगा। सो xnk माइनस ynk ये आपां नूं समझ आ गया कि k अप्रोचिज टू इनफिनिटी ते, ठीक है जी। देखो सिंपल जी गल है, दो चीज़ों का डिफरेंस है, एब्सोलूट वैल्यू है, नैगेटिव हो नहीं सकता तुहाडे पास। अगर आ चीज़ 0 आ जाए तो वैल्यू बराबर ही आऊगी, बराबर आऊगी जिथे तुसीं कन्वर्ज करते सी वो वैल्यू, जिथे तुसीं कन्वर्ज करते सी वो वैल्यू बराबर आ जाऊगी, ठीक है जी। हुण दिक्कत कित्थे अराइज हुई, हुण ध्यान नाल समझना तुहाडे कोल, ठीक है। आह वाला पार्ट है जिहड़ा, आह वाला पार्ट थोड़ा एक है, देखो इत्थे सीगा लैस दैन तो 0 आ गया, आह वाला पार्ट कोई ना कोई एप्सिलॉन की वैल्यू होगी, ਇਹਦਾ मतलब जिथे आ कन्वर्ज करूगी ये उस तरफ चला जाए तो फिर ਇਹਦਾ मतलब है इन्हों दोनों का जो डिफरेंस है ये 0 होकर बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि ये ग्रेटर दैन है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती, कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब है तुहाडे कोल कि ये लिमिट एडजस्ट नहीं होनी, बराबर नहीं, इत्थे और इत्थे फर्क देखो, इत्थे की सीगा कि जदों के ने इनफिनिटी नूं अप्रोच करना, इन्हें 0 नूं अप्रोच कर जाना, जदों इन्हें 0 नूं अप्रोच किया तो इन्हां दा जिहड़ा डिफरेंस है वो 0, वैल्यूज़ इन्हां दी बराबर आ जानी है। बट इत्थे वाली चीज़ नहीं होएगी, क्यों नहीं होएगी, जे तो लैस च हुंदा फिर तो हो जाती, जो ग्रेटर च है फिर नहीं होएगी। सो जो फस्ट पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी है वो साडा की इंप्लाई करता है, वी सी दैट एफ एन, ठीक है, वी सी दैट एफ ऑफ एन तो एफ ऑफ कन्वर्ज बट देयर लिमिट्स आर डिफरेंट। सो लिमिट्स क्यों डिफरेंट ने तुहाडे को, ठीक है जी। ध्यान नाल देखो, सिंपल जी गल है, तुहाडे को जे तां ये वैल्यू 0 हुंदी फिर तो जिथे इन्हें कन्वर्ज करना सी उन्हें उहदे बराबर हो जाना सी। हुण ये वैल्यू है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसदा मतलब डिफरेंस कोई भी वैल्यू है तो पहली चीज़ पॉजिटिव समथिंग उहदे दूसरी का, इसदा मतलब दोनों च गैप हैगा, जे गैप हैगा तो इसदा मतलब है सेम पॉइंट ते कन्वर्ज नहीं करनगे। तो आ सीक्वेंस है जिहड़ा लिमिट्स आर डिफरेंट, जे थोड़ी लिमिट्स डिफरेंट होण तां तुसीं कॉन्टीन्यूस नहीं हो सकते। शुरू च लेट की कीता सी एफ इज़ कॉन्टीन्यूस फंक्शन, जे ਇਹਦਾ मतलब है कि कंट्राडिक्शन है। हुण क्वेश्चन की होया, इत्थे आपां एक रूल लाता, मैं तुहानूं कहा बई तुसीं देयर लिमिट्स आर डिफरेंट, तां तुसीं जिहड़ा हैगा ये रिजल्ट आपां ने लाता कंट्राडिक्शन, और रिजल्ट की है, और रिजल्ट मैं आ लिखिया है, ठीक है। सो हेन्स डेफिनेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी कहते हैं इनू, जी मैं नीचे लिखी है हेन्स डेफिनेशन, तो है कि ये सो if a function fn is defined on interval this continues at a if and only if यानी both ways for every sequence, अगर सीक्वेंस किसी देखो कह की रहा है, सिक्वेंशियल डेफिनेशन करांगे होर चीज़ां क्लीयर हो जानियां ने। कहता अगर कोई फंक्शन है कॉन्टीन्यूस है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन की है, कोई भी सीक्वेंस अगर ए एन लैने जिहड़ा ए ते कन्वर्ज करता उहदे कोरसपोंडिंग एफ ऑफ ए एन एफ ऑफ ए ते कन्वर्ज करना चाहिए है, ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब की होया बई जे ए एन ए ते करता तो एफ ऑफ ए एन करना चाहिए, ਇਹਦਾ मतलब पीछे की होना चाहिए सी, अगर एक्स एन के तो वाई एन के दोनों सेम वैल्यूज़ दे रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स एन के तो एफ ऑफ वाई एन के ने भी सेम देनियां सी, जो कि नहीं दे पाया, जो कि नहीं दे पाया, इस करके कंट्राडिक्शन होएगी। सो मेरा ख्याल है तुहानूं थ्योरम समझ आ गई होगी, और इस थ्योरम का यूज़ बहुत ज़्यादा वधिया हैगा, ठीक है जी। दिक्कत कित्थे है, जे मान लो किसी नूं बॉल्ज़ानोवेस्टर्स नहीं आती या सब सीक्वेंस नहीं आता, मे बी उत्थे दिक्कत हो सकती है तुहाडे कोल, बाकी सारिया चीज़ां बड़ियां ठीक ठाक क्लीयर हैगियां, ठीक है जी। सो चलिए अगे आपां हुण आपां इहदा यूज़ देखिए। तो जे यूज़ देखिए आपां थ्योरम की पढ़ी सीगी, आपां थ्योरम यही पढ़ी है कि जे मेरा ठीक है फंक्शन क्लोज इंटरवल ते यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूस है, सॉरी क्लोज इंटरवल ते कंटीन्यूस है तो यूनीफॉर्म कंटीन्यूस भी होएगा। सो मैंने एक क्वेश्चन किया गया, मैनू कहता कि ए वाली चीज़ नू यूनीफॉर्म कंटीन्यूस शो कर दो। सो इंटरवल दिता हुआ है, इंटरवल क्लोज्ड आ गया, आप खुश हो गए भी थ्योरम लग सकती है। सो लो मैं की कीता, मैं फंक्शन ले लिया, ठीक है एफ एक्स, यदी डोमेन देखी, डोमेन जी है आ चीज़
डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी होंगे ना, जिथे फंक्शन ही नहीं डिफाइन है उत्थे डिसकंटिन्यूटी आऊगी। सो -1 तो इस क्वेश्चन डिसकंटिन्यूटी है, बट -1 है जोड़ा तुहाडे पास उस इंटरवल च नहीं आ रहा जोड़ा आप इंटरवल लिया होया हैगा। ਇਹਦਾ मतलब है साडा एक रैशनल फंक्शन है Px/Qx रैशनल फंक्शन हैगा, ठीक है जी। रैशनल फंक्शन है, ऊपर भी पॉलीनोमीयल है नीचे भी पॉलीनोमीयल है। पॉलीनोमीयल दोनों कंटीन्यूज होंगे, हेठले का ख्याल रखना होंगे, वो आप रख लिया -1 नहीं। ਇਹਦਾ मतलब मेरा फंक्शन कंटीन्यूज है किस इंटरवल च दो, ठीक है जी। इन्नी तुसी बड़े आराम नाल लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हो। फंक्शन दिता, डिसकंटिन्यूटी देखी, चैक किता इंटरवल च हैगी है कि नहीं, इंटरवल दे विच नहीं हैगी सी, मौजां लग गईयां, ठीक है। Px/Qx आप ले लिया, ठीक है। रैशनल फंक्शन इट इंप्लाई f(x) इज कंटिन्यूज ऑन क्लोज इंटरवल। जे क्लोज ते कंटिन्यूज हो तो क्लोज ते ही यूनीफॉर्मली कंटिन्यूस हो गए। सो कितना सौखा हो गया, मतलब ਇਹਦਾ मतलब अगर क्लोज इंटरवल वाला कोई भी क्वेश्चन है और थ्योरम तुहाडी बुक विच है, ठीक है, तो ये थ्योरम लगा के तुसी क्लोज इंटरवल वाला क्वेश्चन कोई भी कर सकते हो, ठीक है जी। जिथे ओपन आया उत्थे देखांगे फिर जोड़ा हैगा भी उत्थे की चेंजिस करते हैं, बट क्लोज इंटरवल वाले क्वेश्चन तुसी आराम नाल कर सकते हो। क्या ये बाय डेफिनेशन हो सकता है? बड़े आराम नाल हो जाऊगा। बाय डेफिनेशन करके देखियो तुहाडे को जो डेफिनेशन कल पढ़ाई सी, ठीक है जी। अज इसकी एप्लीकेशन हुण आपां नूं क्वेश्चन आ गया f(x) = x²। इनू यूनीफॉर्मली कंटिन्यूस कहना है 0 तो 2 दे विच। ग्राफ है जी 0 तो 0 पैराबोला ही है, एक साइड बननी है, पूरा ग्राफ कंटिन्यूस है, कोई भी ये ब्रेक नहीं आई हैगी। ਇਹਦਾ मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है कि उत्ते 0 तो 2 दे विच कंटिन्यूस है, ठीक है। तो जे क्लोज इंटरवल तो कंटिन्यूस है, फिर यूनीफॉर्मली क्लोज वही उसी इंटरवल तो यूनीफॉर्मली क्लोज। ਇਹਦਾ मतलब अज असी यूनीफॉर्म जोड़ा यूनीफॉर्म क्लोज कहता, यूनीफॉर्म कंटिन्यूस करन दा एक तरीका होर सीख लिया कि तुसी कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल तो शो कर दो, वो यूनीफॉर्मली कंटिन्यूस अपने आप हो जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू।